Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 10. I am Asif Munir and I am teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture. What we covered in our previous lecture, we talked about the remaining relational algebra operations, that was division, and then we talked about the aggregate and grouping operations. As I discussed, that we have a number of situations when we need to have the totals or subtotals in our reports, or with the help of the data we can basically generate certain reports with totals and subtotals, and these aggregate and grouping functions were basically operations were helpful in those situations. Then we shortly touched relational calculus. We talked about two forms of relational calculus, that was tuple relational calculus and domain relational calculus. So students, as we discussed that both relational algebra and relational calculus, they are basically theoretical languages. So we discussed that SQL is basically based upon both these languages, and it will help us basically after learning relational algebra and relational calculus. It will be helpful in better understanding of SQL. Before starting with the today's lecture, we are finished with chapter number 4. We will start chapter 5, which is data manipulation language, and basically we will be starting SQL, structured query language. That is the major language that is used to interact with the database. Any kind of interaction with the database is basically performed with the help of SQL, and we will see that how basically SQL statements are written, what kind of rules are there, and how basically it is very easy to learn. So this is our chapter number 5. If we are basically if we refer to our textbook that has been referred for this particular course, and the title of the chapter is SQL data manipulation. अब एक चीज़ जो मैं आपसे जिक्र करता चलूँ कि जब हम कोई भी, अभी तक हमने जैसे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस की बात की, तो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस जो है दोनों वो थ्योरेटिकल जो है फाउंडेशन हमें प्रोवाइड कर रही थी, और हमने कहा कि जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल है, दैट विल बेसिकली दैट इज़ बेस्ड अपॉन बोथ दीज लैंग्वेजेस, जो हमारी थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस हैं. अब उनको तो एज सच हम कहीं किसी टूल पे जो है वो हम एग्जीक्यूट करके या लिख के तो नहीं देखते, लेकिन जो एसक्यूएल होगी डेफिनेटली दैट विल बी यूज्ड टू रिट्रीव और बेसिकली परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटाबेस. तो हमें अब उसके लिए एक चीज़ ये देखनी है कि हमें कोई ना कोई जो है वो टूल यूज़ करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स वो जो हमने बात की थी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वी वुड बी एबल टू राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, और फिर हम जो है उस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का रिज़ल्ट जो है वो हम देख सकते हैं. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक एसक्यूएल स्टेटमेंट किन फॉर्म्स में लिखी जा सकती है. तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स के जिसके थ्रू बेसिकली हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो वी विल बेसिकली लुक इनटू दैट आफ्टर सम टाइम.
अब जो इस कोर्स का मतलब आज का जो आपका लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल सेशंस, क्योंकि जी आपका ये वाला जो लेक्चर है दैट विल हेल्प यू टू बेसिकली वर्क विद द DBMS और SQL स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे और उन SQL स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपने लैब के सेशन में या आप अपने घर में जहाँ पे भी आप इसको करना चाहें। अब जो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था दैट देयर आर नंबर ऑफ बेसिकली DBMS अवेलेबल दैट कुड बी यूज्ड, बेसिकली यू कैन इंस्टॉल देम ऑन योर PC और लैपटॉप and you can basically use that particular DBMS and you can create database, you can interact with the database and so on. So we have also a number of options available, but for this particular course I have selected basically Microsoft SQL Server and version is it's 2008, Microsoft SQL Server 2008 and release 2 we will be using in this particular session, but today we won't be basically executing our queries on basically DBMS, the facility that is provided by the DBMS, but basically we will start with the SQL, that how basically we write SQL statements and how they can be written for certain situations, and then when you are basically used to write SQL statements, then you can execute those statements anywhere using any kind of DBMS, so that will not be a problem at all. Let's start with this chapter. First of all, I would like to discuss the objectives of SQL. What are basically objectives behind SQL? So as we discussed that the database, we discussed about the relational model in detail, and we said that a relational model has basically three major constructs or components. We talked about the structural component that basically helps to define the structure, and we said that the relational data model basically has relations or tables, and then we talked about another component that was manipulative part or manipulation part, and we needed a language that was basically necessary to interact with the database in any form, whether you are creating a database or whether you want to perform some other operations. Likewise, we discussed about the integrity constraints basically component, and that were basically used to add certain constraints on the database. So we discussed all these components in detail, and now when we talk about the database language that is used to basically interact with the database, then we think that the database language should basically allow users to basically perform certain activities like create the database and the relation structures, because we are working with the relational data model, and we need to create a database, and then we need to define relations. As I discussed earlier in my previous lectures, that if you logically think, then there are certain operations that could be performed on the database. The first operation that makes sense is to create an empty database where you can place a number of relations or tables within that database. So that could be the first operation that must be performed if you want to basically store your relations somewhere. Then there must be a database. So database is nothing but it's a collection of relations, relevant relations, you can say. So the next logical step
we say that there must be a file or table in which we want to basically store some kind of data. So this is again we need to create a table or relation, and it is basically concerned with data definition. I already discussed it. When we have got the relation or table, then there are certain operations that could be performed on that particular relation. So suppose our relation or table is still empty, there are no basically there is no data within that particular relation or table, then there is basically no way that we should be retrieving data from that particular relation. It doesn't make sense. We can't delete data. Again, it doesn't make sense. We can't update data because there isn't any data available till now in that particular relation. So the first logical operation that you could perform basically upon that relation is that you can insert data, and as we know that the data in the relation is in the form of tuples or rows, and we can insert certain rows, and once we have certain rows or tuples in our relation, then definitely we can perform the other operations, like if we need to update that tuple in any way, certain attributes, we can update that tuple. If we want to delete that particular tuple, we can delete that tuple. If we need to access that tuple, we can retrieve or select the data from that particular relation. So these are some other operations that could be performed on database. And finally, when these all operations, whether it's insert, and insert is basically concerned with the data, we insert rows, then we have update. Update again is basically update is performed upon certain attributes maybe, and then we can delete tuples or rows, and the fourth operation is select or retrieve, that we can basically access the data that is available in the relation. So all these four operations, they are basically concerned with the data, not with the data definitions. And as we discussed that first we created an empty table or file or relation, then when you have a relation, there is always the possibility that if you don't need that relation anymore, then you can delete that relation. So you can delete that particular table or relation. So this is the last logical operation, and again it's concerned with the data definition part, not with the data manipulation. So if you basically got this information, then it isn't a problem that what kind of facility should be basically made available by the SQL. So first thing is that we should be able to create the database and the relation structures, and the second operation or the facility that should be provided by the SQL is that we should be able to perform insertion. Insertion means we need to add certain rows. Modification, we need to change some certain values for certain attributes. Deletion, and of course the selection. And finally we should be able to perform simple and complex queries. So queries could be could range from very simple to very complex. We will definitely go through all the queries from the simple to the complex ones. Now another feature that should be provided by the SQL is that these all tasks should be provided to the user with minimal effort and command structure or syntax. What does it mean? That it should be very easy for the user, that the user shouldn't be basically should not have to have a very
complex syntax for the SQL. It should be easy basically in terms of writing those SQL statements. And finally, it must be portable. What does it mean? Portability means that suppose I have written database application and I have used some SQL statements, and suppose I worked on Microsoft Access or maybe Oracle, and now if I switch to another DBMS, then all those statements or all those applications that I have basically all those SQL statements that I have written using SQL, they should be basically working on another DBMS as well. So it should be portable. It shouldn't be like this, that I have if I have used basically Microsoft SQL Server, and I have written those all SQL statements, and when I shift to another DBMS like Oracle or something else, then those statements should work there as well. Okay, we discussed that SQL is a transformed oriented language, and what we meant by transform oriented, that it's a basically non-procedural language in which we basically concentrate on what rather than how. And if we talk about this transform oriented language, then we can basically think of two major components. One is the DDL, and DDL stands for data definition language, and as the name reveals, that DDL will be used to define the database structure. All the operations that are concerned with data definitions, that will be basically performed with the help of DDL. And the other major component is DML, data manipulation language, and it is concerned with the manipulation of data. So insert, delete, update, and select or retrieve, all those operations that are concerned with the manipulation of data, not with the data definition, are performed with the help of DML. And in some texts you find another category that is called DCL, data control language, that is concerned with the controlled access to the data. But you can basically think that portion within DDL right now. If we talk about the SQL, there are several basically versions available. Before the SQL 1999, there wasn't any commands available in SQL that included this programming or basically if else or loops or something like that. There wasn't any facility available in SQL, and SQL was basically available only in two forms. Either you could use a terminal and you could basically write SQL statement interactively, and whenever you written an SQL statement, you saw the result on that terminal using some interface of the DBMS. And the other way or other form in which the SQL was used was basically you embedded SQL statements within another procedural language like Java or C or C++. You can use the SQL statements within those basically host languages. I think you remember we discussed all these things in our previous lectures. Now, if we talk about SQL, SQL is quite easy to learn.
you will see in few moments that the syntax of basically SQL is very simple. It's just like English, and you just need to learn few things and you will be easily able to write SQL statements. So it's a non-procedural language, and you are basically concerned only with the what portion, not with the how. And the final thing that is concerned with the SQL is that it's free format. Free format means that you don't need to basically place certain lines on basically that you have to when you are writing an SQL statement, then you need to basically write that particular statement on this line and so on. So you can write basically freely in sense that you can use upper case or lower case, or maybe it doesn't make any difference. So if we look at the SQL, then these are few examples that will be easily basically you can see that it's quite easy to write. We have first SQL statement that is from DDL, and it's like create table staff, and we have staff is the name of the relation. Create table, as the name reveals, that this command is concerned with DDL, and staff is the relation, and we need to create a table or relation, and we have certain attributes like staff number, and then we are defining the data type of that particular attribute or column. Then we are basically providing the length of the characters for that particular column. We have last name. Again, it's a variable character 15, so a name could contain 15 characters at most. We have salary, decimal 7,2, so salary will be in decimal with 2 digits after the decimal. This is how we basically create tables. And but don't worry, right now we will basically go through these all statements in very detail. This is just a trailer, you can say, कि आपको just एक दिखाने के लिए कि ये आपकी जो है इस तरह SQL statements लिखी जाती हैं. इसी तरह हमारी एक DML की statement हमें नज़र आ रही है जो नंबर 2 है. It's insert, कि जी कैसे आप कोई भी रो जो है वो किसी एक टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि insert into staff वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को हम देख रहे हैं कि जी उसके बाद पैरेंथेसिस हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे रहे हैं. जो पहली वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू स्टाफ नंबर, दूसरी वैल्यू लास्ट नेम, और तीसरी जो वैल्यू है वो सैलरी है. जो थर्ड हमारी SQL स्टेटमेंट है दैट इज़ कंसर्न विद द डाटा रिट्रीवल. अगेन DML पोर्शन, इंसर्ट और सिलेक्ट दोनों DML हैं हमारे स्टेटमेंट्स हैं. सिलेक्ट में आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टाफ नंबर, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000. लेकिन जस्ट आपको दिखाने का इस टाइम पे इस चीज़ को का ये मकसद है कि ये बहुत आसान सा इसका सिंटैक्स है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. हम थोड़ी सी देर में इनकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे. Definitely SQL will be used with the number of users. It could include DBAs, database administrators. They could write basically any kind of queries. The managers, they are interested in certain basically aspects of data. Application developers, when they are developing certain applications for the users, then they need to write certain queries, and other types of end users will be using the SQL to interact with the database. We have basically ISO standard exists
now for SQL, and it's a both formal and de facto standard. De facto standard is a standard that is basically because of the wide acceptance of the maybe people that want to use that particular product, or the organizations that need to basically use those product. So SQL has become a de facto standard for a relational database management system. So we have two versions. One was ISO 1992, also called ISO 2 or SQL 2, and we have 1999A. So there are two standards available for SQL. थोड़ी सी बात अभी हम हिस्ट्री के ऊपर भी कर लेते हैं कि जो SQL का अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर आपको याद हो, हमारे जो पहले लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेसेस के ऊपर जो है उसकी भी हिस्ट्री के ऊपर बात की थी। तो हमने कहा था कि जो हम मेजर रिसर्च है दैट वाज बेसिकली डन ऑन IBM, जो आपके IBM के सैन जोस लेबॉर्ट्री है, जो रिसर्च सेंटर था वहाँ पे हुई, और बहुत सारे रिसर्चर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे थे, और उन्होंने बेसिकली जो है इसमें काफ़ी जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो 1974 में डी चैम्बरलिन जो है defined a language that was called structured English query language, SQL, and or it was basically based upon the relational data model, और इस relational data model को basically को इंटरेक्ट करने के लिए उसके साथ जो है वो ये लिखी गई थी। फिर इसका एक रिवाइज्ड वर्जन SQL 2 जो है 1976 में आया, लेकिन इसके नाम के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कुछ इश्यूज थे, तो उन्होंने ये जो इंग्लिश का वर्ड है ये इसमें से निकाल दिया, लेकिन स्टिल जो है अभी भी मतलब इसको सीक्वल ही कहा जाता है। समटाइम्स अगर आप प्रोनाउंसिएशन लोगों से सुने तो वो इसको सीक्वल ही कहते हैं, गो के जो ऑफिशियल जो इसका नेम है दैट इज SQL, नॉट सीक्वल। सो ये चीज़ अब जो IBM था, IBM जो है जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है IBM वहाँ पे कर रहा था रिलेशनल डाटा मॉडल के हवाले से। तो एक सिस्टम R के नाम से एक प्रोजेक्ट था जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो काम हो रहा था। तो वो जो SQL 2 के ऊपर बेस कर रहा था जो आपका सिस्टम R था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मज़ीद हिस्ट्री को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो SQL की रूट्स हैं दैट बिलोंग टू स्क्वायर, दैट इज़ अगेन एक सिस्टम R से पहले का एक प्रोजेक्ट है, और इट्स स्पेसिफाइंग क्यूरीज एज रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो मतलब जो SQL के रूट्स हैं वो इसके साथ जाके मिलते हैं स्क्वायर के साथ। 1970s में, लेट 70s अराउंड 1978-79 Oracle जो है दैट वाज बेसिकली केम इनटू द मार्केट, और it launched its first basically relational database management system. That was the first commercial database management system that was supporting basically SQL, or that was based upon SQL. In 1987 ANSI and ISO published initial standards for SQL, और 1989 में जो है उन्होंने इसके इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर जो है वो प्रोवाइड की। मतलब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो है ताकि आपको हिस्ट्री थोड़ा सा मतलब क्योंकि हमें हिस्ट्री से एज सच कोई टेक्निकली अगर देखें तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए। 1992 में जैसे मैंने बताया कि जो पहला इसका ISO का वर्जन था, स्टैंडर्ड जो है वो आया, और इट इज़ कॉल्ड SQL 2 और SQL 92।
इसके बाद जो अगला वर्जन है वो 99 में आया और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मैनेजमेंट की सपोर्ट थी और दैट वाज कॉल्ड SQL 99। इसके बाद एक और जो है वो 2003 में भी जो है SQL 2003 के नाम से एक रिलीज आ चुका है। हिस्ट्री इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि SQL की क्या इम्पोर्टेंस है, SQL जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है मतलब किस तरह उसकी इम्पोर्टेंस है। तो एक तो हमने कहा कि SQL जो है दैट हैव बिकम ISO स्टैंडर्ड। तो जो भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेगा जो भी कोई वेंडर, तो उस को बेसिकली अगर वो कहता है कि हमने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो SQL जो है वही स्टैंडर्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो SQL की जो बेसिकली अवेलेबिलिटी है या सपोर्ट है वो उसके अंदर होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड होने के अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जी जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो SQL है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात कि SQL हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। IBM का जो सिस्टम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, इट हैज़ बिकम द पार्ट कि जी जितनी भी आपने इंटरेक्शन करनी है वो SQL को यूज़ करके करनी है। तो इस हवाले से बेसिकली जो है आपकी SQL का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। There are certain organizations that are using SQL, जैसे X ओपन है कंसोर्शियम फॉर यूनिक्स, वो भी SQL को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड है, तो मतलब जिसने भी अमेरिकन गवर्नमेंट में जितनी भी सेल्स होती हैं डाटाबेस की, उसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड अगेन जो है वो SQL है। और फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड जो है ये इसको जो है SQL को स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा भी जो SQL है वो बहुत सारे दूसरे जो स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है। ठीक है कि जी बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बेस कर रहे हैं SQL के ऊपर और SQL को उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन बेसिकली पुट इनटू द SQL। और मतलब जब आप डेफिनेटली बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स या बहुत सारे ऐसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं जिनके अंदर SQL को मतलब एज अ जो है वो इंट्रैक्शन के तौर पे वो यूज़ किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि फिर कितनी हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जितने भी आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो अपने आप को रिलेशनल कहते हैं, दे प्रोवाइड SQL। अब अगर हम देखें कि कौन से ऐसे दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि SQL को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका ISO इंफॉर्मेशन रिसोर्स डायरेक्टरी सिस्टम है, IRDS स्टैंडर्ड है जो कि SQL को यूज़ कर रहा है अपने स्टैंडर्ड के अंदर। रिमोट डाटा एक्सेस स्टैंडर्ड है, वो भी जो है वो SQL को अगेन यूज़ कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं SQL की, लाइक जो आपकी नई मार्केट है उसकी डिमांड कुछ डिफरेंट है, तो आपके OLAP जो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, आपकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं या वो इस हवाले से वो सारी जो है वो भी SQL को यूज़ करती हैं। तो SQL मतलब SQL की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लर्न SQL you can basically get a lot of basically support from many tools। अब हम जो बात करेंगे, हम ISO का जो SQL स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो कुछ चीज़ें इस हवाले से, कुछ मतलब फाउंडेशंस हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो हमने इस हवाले से समझनी है। तो पहली जो चीज़ है कि जी जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, जैसे रिलेशनल टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते आए थे, कि हमने रिलेशनल मॉडल के अंदर पढ़ा कि जी आपका रिलेशन कहते हैं, टुपल कहते हैं, आपका
एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फिर हमने डिग्री की बात की, कार्डिनैलिटी की बात की, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की गई थी रिलेशनल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम देखेंगे कि जो ISO का SQL स्टैंडर्ड है वो इस जो रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी है इसका इस्तेमाल उस तरह नहीं करता। तो हम फॉर्मल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, हम रिलेशन एट्रीब्यूट टुपल्स के बजाय जो है इसमें रिलेशन को टेबल कहा जाएगा या कहा जाता है। एट्रीब्यूट के लिए हम कॉलम्स यूज़ करते हैं और टुपल्स के लिए हम रोज़ के जो है वो टर्म्स यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ के जी हम उसमें जब हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन कवर की थी, तो हमने कहा था कि वहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी जो ऑपरेशन है या रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन की हमने बात की थी, तो हमने कहा था जी कि आपके किसी भी रिलेशन के अंदर डुप्लीकेट टुपल्स या रोज़ नहीं होती। लेकिन हम देखेंगे कि जो SQL है वो इसमें मसलन अगर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं और वहाँ पे रेपिटेशन है भी रोज़ की, गो के मतलब एक्चुअली रेपिटेशन तो नहीं होगी, लेकिन सपोज हमने कोई ऐसी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए जिनमें रेपिटेशन आ रही है तो वो उस रेपिटेशन को एलिमिनेट नहीं करेगा, डुप्लीकेट रोज हमें दिखाएगा। लेकिन देयर आर वेज कि हम उनको अगर डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो वी कैन अवॉइड दैट डुप्लीकेशन। इसी तरह हमने कहा था जी कि जो एट्रीब्यूट्स, जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, लेकिन SQL में ऐसा हम देखेंगे कि डेफिनेटली SQL में कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर है कॉलम्स का। इसी तरह रोज़ के हवाले से हमने कहा था कि रोज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती कि ये पहली रो है, ये आखिरी रो है या सो ऑन, कोई मतलब उसका स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन हम देखेंगे कि SQL जो है उसमें हम सर्टन बेसिस के ऊपर जो है वो ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो कि हम इस हवाले से कवर करना चाह रहे थे कि जो है क्या फ़र्क है जो ISO का SQL स्टैंडर्ड है और उसका जो हम रिलेशनल मॉडल पढ़ के आए थे उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंसेस। When we talk about KG, we write SQL statements, then there are certain things that needs to be addressed और उनका हमें पता होना चाहिए। There are whenever we learn a language, there are certain rules for that particular language। जैसे आपने अगर कोई C प्रोग्रामिंग पढ़ी हो या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो या इवन इंग्लिश जब आप सीखते हैं या उर्दू सीखते हैं, तो there are certain rules that needs to be basically learn first and then you are able to learn that particular language. So whenever we are talking about learning SQL, then we need to learn the rules that are basically concerned with SQL। उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं कुछ जो हर लैंग्वेज में हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात करें या कोई भी और, तो उसमें कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जो कि उस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दिए गए हैं एंड वी कांट बेसिकली यूज दोज रिजर्व वर्ड्स इन अदर सिचुएशंस या उनको किसी और फिर उस सिनेरियो में हम यूज नहीं कर सकते। तो उनका जो मीनिंग है फिर वो सिस्टम उसी को समझता है, तो इसलिए हमने उनको उसी तरह यूज करना है। दूसरी बात, जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी होंगे, मसलन जैसे आप C प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो C प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि इंट एक रिजर्व वर्ड है कि जी की वर्ड है, वो एक डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यूज़र डिफाइंड वर्ड भी होते हैं कि मसलन मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ इंटीजर डाटा टाइप का, तो मैं लिखता हूँ इंट x। तो बिल्कुल इसी तरह SQL के अंदर भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होंगे और कुछ यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होंगे। तो रिजर्व वर्ड्स हम देखेंगे कि मसलन सिलेक्ट है वो एक रिजर्व वर्ड है, इंसर्ट है, क्रिएट टेबल एंड सो ऑन, जो मुख्तलिफ आपके DDL या DML से रेलेवेंट जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होंगे। और बहुत सारे आपके यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी होंगे। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स मसलन जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल का नाम जो है वो यूज़र खुद डिफाइन करेगा। इसी तरह उस टेबल के अंदर मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनके नाम जो है वो यूज़र खुद डिफाइन करेगा।
एंड सो ऑन, व्यूज कोई क्रिएट कर सकते हैं, या मतलब इस किस्म के डाटा ऑब्जेक्ट्स, जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जो है आप वो डिफाइन करना चाहें वो यूजर करेगा। अब रिजर्व वर्ड्स के हवाले से एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रिजर्व वर्ड्स जिस फॉर्म में दिए जाते हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्म में जो है उनके स्पेलिंग्स की अगर बात करें तो अगर हमें कहा गया सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के स्पेलिंग है जो वो वही वाले हमने उधर यूज़ करने हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था कि एसक्यूएल जो है इट्स नॉट केस सेंसिटिव, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सिलेक्ट को अपर केस में लिखा या लोअर में लिखा या मिक्स में लिखा तो इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेलिंग जो है वो सेम होने चाहिए। इसी तरह अगर कोई रिजर्व वर्ड है तो वी कांट स्प्लिट दैट रिजर्व वर्ड, कि मसलन सिलेक्ट है तो हम SEL को अलग कर लें और बाकी ECT को अलग कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मल्टीपल लाइन के ऊपर जो है जब हम लिखेंगे स्टेटमेंट तो उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अब जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया कि आपके टेबल का नाम हो गया, आपके डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेबल्स हैं, चाहे आपके एट्रीब्यूट्स हैं या व्यूज़ हैं वगैरह वगैरह, ये सारे जो है आपके जो है वो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। और बेसिकली एन एसक्यूएल स्टेटमेंट विल बी कंपोज्ड ऑफ बोथ रिजर्व वर्ड्स एंड यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। देयर एग्जिस्ट मेनी डायलेक्ट्स ऑफ एसक्यूएल, कि जी आपके मुख्तलिफ किस्म के एसक्यूएल के डायलेक्ट से मुराद ये कि उसके डिफरेंट फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब कुछ फ्लेवर्स के अंदर कुछ एक चीज़ एक तरह से है, मतलब एक तो ये है ना कि कुछ स्टैंडर्ड जो था उसको तो सारा लोगों ने फॉलो किया, जो भी एसक्यूएल को जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली वो एसक्यूएल के स्टैंडर्ड को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन उस स्टैंडर्ड के ऊपर वो कुछ फर्दर जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स भी अवेलेबल मुख्तलिफ वेंडर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब फिर डिफरेंट उसके डायलेक्ट्स आते हैं। तो मसलन बाज़ डायलेक्ट्स में फिर कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो है वो उनमें थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंस उनमें आता है। जैसे ये है कि कुछ जो आपका स्टैंडर्ड तो वो ये कहता है कि जी आपका सेमी कॉलन जो है होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ में इसके बगैर भी मतलब आप देखेंगे कि उनमें स्टेटमेंट्स आप एसक्यूएल की लिखें तो हर स्टेटमेंट शुड एंड विद अ सेमी कॉलन, लेकिन कुछ DBMS जो है उसके बगैर भी उधर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे इवन आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप देखेंगे कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप बेशक उसको सेमी कॉलन ना भी लिखें तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली आप ये अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आप हर जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके आखिर में सेमी कॉलन लगाएं, दैट बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर केस इनसेंसिटिव। अब मोस्ट से क्या मुराद है जी कि जितने रिजर्व वर्ड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें वो केस इनसेंसिटिव में, लेकिन जो आपके लिटरल है वो जो है वो आपका बेसिकली वो जो है वो केस सेंसिटिव है। लिटरल से क्या मुराद के जो आपने डाटा, फर्ज करें एक नेम था, नेम के अंदर आपने एक डाटा रखा हुआ था स्मिथ, तो अगर स्मिथ आपने कैपिटल में लिखा तो अब जब आप वो सर्च करना चाह रहे हैं नेम तो आपने उसको एग्जैक्टली वही वाला केस यूज़ करना है जो आपने उधर यूज़ किया है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ ये स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइंड है, लेकिन जब आप मे बी कुछ DBMS के ऊपर ये आप अप्लाई करके देखें तो शायद वो इसको भी जो है वो इग्नोर कर रहे हो। तो मतलब लेकिन ये है कि ये आपका ज़्यादातर DBMS के अंदर ये चीज़ है कि जो आपके लिटरल्स हैं या जो आपका डाटा है दैट इज़ केस सेंसिटिव, लेकिन बाकी जो आपके रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके जो है वो केस इनसेंसिटिव हैं। इसी तरह आप जो आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, जब भी आप लिखते हैं तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स शुड बी रिटन इन बेसिकली वे कि जी आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी इजी टू रीड हो, कि मतलब आपको क्लियर समझ आ रही हो कि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी उसमें आप स्पेसिंग कर सकते हैं, इंडेंटेशन इसको कहते हैं कि आप थोड़ी सी स्पेस दे के लिखें ताकि आपको क्लियर उसकी जो है वो रीडेबिलिटी हो। और इसी तरह आप लाइनेशन कर सकते हैं कि आप उसको मल्टीपल लाइंस पे स्प्लिट कर सकते हैं ताकि मतलब जैसे आप एक स्टेटमेंट का आधा हिस्सा एक लाइन पे, थोड़ा कुछ हिस्सा दूसरी लाइन पे एंड इफ रिक्वायर्ड कुछ हिस्सा तीसरी लाइन पे, ताकि आपका एक
क्लियर उस स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही हो और उसको समझने में पढ़ने वाला जो है उसको क्लियर हो, आपको खुद भी क्लियर हो। तो मतलब ये आपको जो प्रैक्टिस है ये फॉलो करनी चाहिए। मसलन अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो ये उधर भी इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है कि आप जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आप ये इंडेंटेशन और मल्टीपल लाइंस पे उसको स्प्लिट करें। मतलब प्रोग्रामिंग में तो डेफिनेटली शायद आपको ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि एक जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन पे होने चाहिए, लेकिन इसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट चूँकि एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल लाइंस पे होती है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इट बेसिकली एनहांसेस द रीडेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो आपको ये प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। The notation that we will be using in our examples is called BNF, Backus Norform, और इसी को हम यूज़ करेंगे। अब इस नोटेशन का मतलब कुछ एक मेथडोलॉजी जो है या उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है, तो हम इसी को कोशिश करेंगे कि अपने थ्रू आउट जितनी भी एग्जांपल्स हम एसक्यूएल की या स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसमें हम यूज़ करें। तो इसके कुछ हम देख लेते हैं कि ये क्या बेसिकली जो है ये नोटेशन किस तरह जो है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखती है। तो पहली जो चीज़ है कि अपर केस लेटर्स रिप्रेजेंट रिजर्व वर्ड्स, कि आप कोई भी अगर जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें जितने अपर केस में कोई भी वर्ड्स लिखे होंगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये रिजर्व वर्ड है, ये वो है जिनको बेसिकली जिसके मीनिंग जो ऑलरेडी सिस्टम को डिफाइंड है, डीबीएमएस उनको कुछ खास कॉन्टेक्स्ट में लेता है। तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि यू विल बी इजीली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व वर्ड्स एंड यूजर डिफाइंड वर्ड्स। लोअर केस लेटर्स रिप्रेजेंट यूजर डिफाइंड वर्ड्स, तो लोअर केस जो है वो हम यूज करेंगे यूजर डिफाइंड वर्ड्स के लिए। जो पाइप साइन है, ये जो आप अपनी स्लाइड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इट इंडिकेट्स अ चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक ही चीज़ की मल्टीपल ऑप्शंस आपको दी होती हैं, तो आपने उन ऑप्शंस को जो अभी हम थोड़ी देर में आगे जो है ना वो इस चीज़ को चूँकि देखेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखना सीखेंगे, तो मे बी अगर कोई बात आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होती तो वहाँ पे मैं इसको जब एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो होपफुली आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन कीप इन माइंड कि ये जो पाइप का साइन है, ये जो वर्टिकल बार है, इट इंडिकेट्स अ चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनमें से आप अगर मल्टीपल ऑप्शंस आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू इस नोटेशन के अंदर हुई हैं। करली ब्रेसेस इंडिकेट अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, जो मैंडेटरी है कि जी मस्ट, उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट आपने मस्ट चूज करना है, तो उसके लिए आप जो भी चीज़ होगी वो करली ब्रेसेस में प्रोवाइड की गई है। इसी तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दैट इंडिकेट एन ऑप्शनल एलिमेंट, के जी इसमें जो चीज़ें जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी होंगी वो ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन जो करली ब्रेसेस है उनमें से एटलीस्ट एक आपको मस्ट यूज़ करनी है, हम देखेंगे। इसी तरह ऑप्शनल एलिप्सिस, ये जो डॉट्स हैं 3, इंडिकेट ऑप्शनल रेपिटिशन 0 और मोर। तो मतलब कोई भी जहां पे आपको ये डॉट्स नजर आएंगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शनल है कि एक एलिमेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा, अगर ज्यादा होते हैं तो उनको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ आप सेपरेट करते हैं। तो मतलब इन सारी चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड्स में। अब एसक्यूएल शुरू करने से पहले मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक केस स्टडी जो इस बुक के अंदर अवेलेबल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारी जितनी भी अब जिस तरह हमने रिलेशनल अलजेब्रा में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वो भी हमने इसी केस स्टडी के ऊपर किए। इसके अलावा जितने भी हमारे अब एसक्यूएल भी होगी वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करेगी। तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ और अब दोबारा कहता हूँ कि प्लीज़ इस जो आपकी केस स्टडी है इसको अच्छी तरह से समझ लें। इसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, उन टेबल्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स किस पर्पज़ के लिए हैं, आपस में इनका रिलेशन किस तरह है। तो थोड़ा सा मतलब आपको अगर आइडिया होगा तो फिर आपके लिए चीज़ें समझना आसान होगा। तो हम ज़रा क्विकली अगेन इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या जो है वो टेबल्स दिए हुए हैं। एक ब्रांच का टेबल है। ड्रीम होम मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्रीम होम जो है एक हाउस
कोई रेंट के हवाले से एक मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है कि कोई बंदा रेंट पे घर लेना चाहता है या अपना घर रेंट पे देना चाहता है तो दोनों सूरतों में वो इनसे राब्ता कर सकता है। तो ये बेसिकली लोगों को इस हवाले से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी जो घर के रेंटल के हवाले से जो हैं वो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इनके पास। तो इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में जो कि ब्रांच के टेबल में डिफाइंड है। सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं और ब्रांच के जो एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांच नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है, पोस्ट कोड है, तो सारी ब्रांच की इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर पड़ी हुई है। स्टाफ से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जो ब्रांच है उसके अंदर स्टाफ काम करता है, उनके कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो बेसिकली इसको रन कर रहे हैं सिस्टम को, तो स्टाफ की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। स्टाफ नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी पोजीशन, मैनेजर है, असिस्टेंट है, सुपरवाइज़र है, सेक्स मेल है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी सैलरी कितनी उसको दे रहे हैं और किस ब्रांच में वो काम कर रहा है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट इज़ कंसर्न विद कैप्चरिंग डाटा अबाउट द प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट, कि जो जो प्रॉपर्टीज़ रेंट के लिए अवेलेबल हैं उनका डाटा इसमें पड़ा होगा। हर एक प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी नंबर दे दिया गया है, उसका स्ट्रीट किस जगह पे वाक़या है, सिटी, पोस्ट कोड, टाइप उसकी क्या है। मैं ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो लेकिन अगेन जो है मैं थोड़ा सा इनको डिस्कस कर रहा हूँ कि वो फ्लैट है, हाउस है या कोई और ऑप्शंस हैं, रूम्स कितने हैं उसके अंदर, 3, 4, 5, रेंट उसका कितना है, ओनर नंबर उसका क्या है ताकि उस ओनर के साथ उस प्रॉपर्टी का जो है वो लिंक रिलेशनशिप बनाया जा सके कि कौन इसको ओन करता है, स्टाफ नंबर कौन सा हैंडल कर रहा है इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट को, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वाली प्रॉपर्टी उसके ज़िम्मे है कि उसने रेंट पे लगानी है, और वो स्टाफ नंबर किस ब्रांच नंबर में काम करता है या इस ब्रांच के हवाले से मतलब प्रॉपर्टी भी किस ब्रांच में ये जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपकी एंटिटी है जो कि इस सिस्टम में मौजूद है, तो जो क्लाइंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सारी जो है इसके अंदर कैप्चर की जाएगी। क्लाइंट नंबर है, हर एक को एक यूनिक क्लाइंट नंबर दे दिया गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, प्रेफरेंस टाइप और उसका मैक्सिमम रेंट। इसी तरह प्राइवेट ओनर है, ओनर वही है जो उन प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं, तो ओनर नंबर है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर, और फाइनली व्यूइंग का रिलेशन है हमारे पास। और व्यूइंग के अंदर कि जी जब भी कोई क्लाइंट जो है वो किसी प्रॉपर्टी को व्यू करता है तो वो उसके अंदर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस हवाले से वो इस रिलेशन या इस टेबल के अंदर कैप्चर की जाती है। जैसे क्लाइंट नंबर के किस क्लाइंट ने व्यू की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी वाली प्रॉपर्टी को व्यू किया, व्यू डेट किस दिन व्यू किया, और उसके ऊपर कोई उसने कमेंट अगर दिया तो वो कमेंट के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये सारा बेसिकली टेबल्स हैं इस डेटाबेस के हवाले से, इस ड्रीम होम के स्टडी के हवाले से अवेलेबल है, और हमारे जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होंगी वो कुछ डाटा इन टेबल्स के अंदर हमने मौजूद है, तो हम इसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या क्या जो है फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये इनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो या एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो आपके सामने ये टेबल होने चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो, अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो जो रिज़ल्ट आया वो किस तरह आया है, ताकि आपको इस डाटा में से नज़र आए कि वो एक्चुअली किन उनके कंडीशंस के बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट आया है। अब हम जो है आई होप कि ये जो अब इवन रिलेशनल अलजेब्रा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ थी, तो अगेन जो एसक्यूएल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि जो पहले कुछ चैप्टर्स की थ्योरेटिकल वो जो थ्योरी थी उससे आप शायद थोड़े से बोर हो गए हों, लेकिन अभी जो है आपको होपफुली बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अब आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उनको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो यू विल फील कि जी आप भी कुछ जो है वो काम कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि दिस पोर्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
जो ये चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, इस चैप्टर का जो नाम है, टाइटल है, वो है एसक्यूएल डाटा मैनिपुलेशन। तो इसके अंदर हम डाटा मैनिपुलेशन के हवाले से जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। वी आर नॉट बेसिकली डीलिंग विद डाटा डेफिनेशंस, तो हम डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन के साथ जो है वो सारा जो ऑपरेशंस हैं, और 4 मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि डाटा मैनिपुलेशन के हवाले से अवेलेबल हैं, जिसमें सिलेक्ट है, टू क्यूरी डाटा इन द डाटाबेस, एक टेबल में से भी हो सकता है, मल्टीपल टेबल्स में से भी हो सकता है, हम देखेंगे। इंसर्ट है, इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल। अपडेट है, अपडेट डाटा इन अ टेबल। और डिलीट है, टू डिलीट डाटा फ्रॉम अ टेबल। तो ये 4 मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि डीएमएल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके जो है इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने से पहले लिटरल्स, हमने ये टर्म यूज की थी, तो लिटरल को हम देख लेते हैं, लिटरल है क्या, ताकि आपको फिर इजीली जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो हम लिटरल को देख लेते हैं। लिटरल क्या है? लिटरल्स आर कांस्टेंट यूज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। लिटरल से मुराद, मसलन जैसे आपने प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो पहली बात कि लिटरल कांस्टेंट्स ही होते हैं, लेकिन कांस्टेंट्स कौन से? जो उसकी वैल्यू होती है। तो मसलन जो किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा? वो लिटरल कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब जितने भी नॉन न्यूमेरिक लिटरल है, नॉन न्यूमेरिक से मुराद क्या कि नंबर्स के अलावा मसलन कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, वो सारे आप जो एसक्यूएल उसके लिए वो यूज करता है कि सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। मसलन आपने लिखना है कि सिटी लंदन है, तो लंदन जब आप मतलब कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर ये लिख रहे हैं कि हमें सिटी लंदन वाली जो है वो तमाम ब्रांचेस दिखा दो, तो वो जो लंदन है आपका वो किस में लिखा जाएगा? सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। लेकिन जितने आपके न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, जैसे आपके नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल में हैं या नॉर्मल हैं, उन सब को आप जो है विदाउट जो है वो सिंगल कोट्स लिखते हो, उनके ऊपर आप कोई भी सिंगल कोट्स इंक्लूड नहीं करते। तो मतलब लिटरल्स का आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी डाटा जो कैरेक्टर नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स हैं जिसमें कैरेक्टर्स या आपके स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे। और जो हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स हैं उनके लिए हम सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे। जो सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है दैट इज सिलेक्ट। तो हम इंशाल्लाह अभी बिल्कुल हम जो है अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड के जी हमने ज़्यादा जो ऑपरेशन है वो डाटा सिलेक्ट करने का है, रिट्रीव करने का है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये किस तरह यूज़ होती है। तो पहली बात कि पर्पज़ इसका क्या है कि बेसिकली रिट्रीव एंड डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम 1 or more डेटाबेस टेबल्स, कि जी अगर हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम सिलेक्ट यूज करेंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल और इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल कमांड एंड इट इज इक्विवेलेंट टू इट कैन परफॉर्म, जो रिलेशनल अलजेब्रा में हम पढ़ के आए थे, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड जॉइन, तीनों ऑपरेशंस जो है इस सिंगल स्टेटमेंट सिलेक्ट के अंदर हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी पावर का आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उधर के जो 3 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको एक इस सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एसक्यूएल कमांड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे मेजर आपका जो ऑपरेशन है दैट इज परफॉर्म्ड इज सिलेक्ट। सिलेक्ट की जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि सिलेक्ट का सिंटैक्स क्या है। तो सिलेक्ट अगर देखें तो सिलेक्ट कीवर्ड है। अब आपने नोटेशन नहीं भूलनी, जो मैंने डिस्कस किया था वो जो BNF जो नोटेशन है वो उसको जहन में रखना है। हमने कहा था जो कैपिटल वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? जो सारे अपर केस में होंगे वो क्या होंगे? वो रिजर्व वर्ड्स होंगे। ठीक है, उनको हम उनके स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा था उनको अपर केस लोअर केस में लिख सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद है इस नोटेशन में हम हमेशा जो है उनको अपर वर्ड केस में ही देखेंगे।
अब उसके बाद आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको याद है हमने उधर नोटेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस कि ये ऑप्शनल चीजें हैं, आप इनको यूज करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। तो ऑप्शनल चीज जो होती है वो आपकी मर्जी होती है, आप यूज करें ना करें। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर देखें तो आपको दो चॉइसेस दी हुई हैं, और हमने कहा था जी चॉइसेस को सेपरेट करने के लिए क्या अवेलेबल है, ये पाइप का साइन मौजूद है, या इसको आप जो भी वर्टिकल बार कहें, तो ये आपका डिफरेंट ऑप्शंस या चॉइसेस के लिए जो है ये यूज होता है। तो इट मींस कि आप पहली बात कि ये ऑप्शनल है सारा कुछ जो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, और दूसरी बात कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है कि डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, और अगेन डिस्टिंक्ट वो कैपिटल है अपर केस में है, तो अगेन इट्स अ रिजर्व वर्ड। इसी तरह ऑल यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों में से, और नहीं यूज करना चाहते तो ना करें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद आप देखें तो आपको करली ब्रेसेस होती हुई नजर आ रही हैं, और करली ब्रेसेस के बारे में हमने क्या कहा था कि करली ब्रेसेस जो हैं वो जो है बेसिकली आपकी मैंडेटरी होती है कि ये कोई ना कोई इनमें से एक एलिमेंट हमने मस्ट लेना है, जो ऑप्शंस डिफरेंट हमें दी है ना उनमें से कोई ना कोई एक लेना है हमने। तो इसमें आप देखें तो आप स्टैरिक यूज कर सकते हो, और फिर अगेन दूसरी और ऑप्शन ये है कॉलम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है। इसी तरह एज न्यू नेम हम देखेंगे कि किसी एट्रीब्यूट का हम नेम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हो। और आप आगे देख रहे हैं अगेन ऑप्शनल में आपकी वो जो एलिप्सिस है, डॉट्स हैं, तो डॉट से मुराद के एक कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, और अगर आपके मल्टीपल कॉलम्स है तो आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के थ्रू इनको आप जो है वो थ्रू सेपरेट करोगे। तो हम इसको भी हमने देख लिया। इसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड है, ये अगेन अपर केस में है तो हमें नजर आ रहा है कि ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। टेबल नेम आप देखें कि जी टेबल नेम कोई यूजर डिफाइन करेगा, और ब्रैकेट जो ऑप्शनल अगेन इसमें एलियस है, और एलियस हम देखेंगे कि कोई भी अपने टेबल को आप अपनी मर्जी का नाम देना चाहें, कोई शॉर्ट नेम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह फिर एलिप्सिस है, और इट मींस कि जी टेबल एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के थ्रू आप उनको सेपरेट करोगे। उसके बाद हमारा वेयर कंडीशन है, वेयर, और उसके बाद कंडीशन है, वेयर कीवर्ड है, और अगेन ये ऑप्शनल है, ये वेयर देना जरूरी नहीं है, आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो ना दें। दूसरी चीज उसके बाद कंडीशन हम देखेंगे कि ये वेयर और वेयर का मकसद क्या है और कंडीशन क्या है। ग्रुप बाय है और कॉलम लिस्ट है, ये भी ऑप्शनल है। इसी तरह हम देखेंगे ग्रुपिंग की हमने बात की थी कि ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो वो ग्रुप बाय की मदद से करेंगे। इसी तरह ऑप्शनल है, अगर ग्रुप बाय यूज हो रहा है तो फिर हैविंग हो सकता है, और हैविंग की कंडीशन आएगी कि अगर हमने ग्रुप के ऊपर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो हम हैविंग के थ्रू लगाएंगे। और फाइनली हमारे पास ऑप्शनल एक और चीज़ है ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद जो है हमारा कॉलम लिस्ट है कि किन के मतलब सॉर्टिंग कोई करनी है, हमने कोई किसी स्पेसिफिक जो है एट्रीब्यूट्स के ऊपर ऑर्डर करना है तो वो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो अगर इसको गौर से देखें तो हमें एक बड़ी क्लियर चीज नजर आती है कि दो जो हमारे कीवर्ड्स हैं सिलेक्ट और फ्रॉम, ठीक है, और ये जो हैं ये मैंडेटरी हैं। वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट, ऑल, ये बाकी सारी चीज़ें, हैविंग, ठीक है, ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऑप्शनल हैं। तो मतलब ये एक आपको थोड़ा सा अभी इसको क्लियर कर लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मतलब बाकी आप ये मस्ट, जब भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है तो ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट और फ्रॉम मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें वो आप लिखें या ना लिखें, आपकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर आप अगर नहीं चाहिए तो आप ना लिखें। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो किस सीक्वेंस में आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोसेस होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो किस सीक्वेंस में प्रोसेस होती है तो फिर आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहली चीज़ कि जो पहला सबसे चीज़ वो जो प्रोसेस की जाती है वो है फ्रॉम।
फ्रॉम मीन्स कि किस टेबल में से डाटा एक्सेस करना है, किस डेटाबेस ऑब्जेक्ट में से डाटा एक्सेस करना है। स्पेसिफाइज द टेबल और टेबल्स टू बी यूज्ड, कि जी किन टेबल या टेबल में से डाटा आना है। तो मतलब जब भी आप डाटा एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो पहली जरूरी चीज तो यही है कि पता होना चाहिए कि किस टेबल में से डाटा लेके आना है। तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद वेयर होता है, और वेयर हम डिस्कस करेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द रोज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कि हम अपनी मर्जी की रोज जो है, वो जो सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की थी कि हम अपनी मर्जी की रोज सिलेक्ट करेंगे, ये वेयर उसी के लिए है बेसिकली। और ग्रुप बाय में हम देखेंगे कि फॉर्म्स ग्रुप्स ऑफ रोज विद सेम कॉलम वैल्यू। तो वेयर के बाद जो रिजल्ट आता है, फिर अगर ग्रुप बाय उसमें मौजूद है तो ग्रुपिंग फिर उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर होती है जिनकी कोई रेपिटेशन हो रही है, जैसे हमने ग्रुपिंग की बात की थी। हैविंग जो है वो ग्रुप बाय के बाद एग्जीक्यूट होगा अगर मौजूद है। और हैविंग आपको पता है कि जो वेयर था वो रोज को फिल्टर करता था कि अपनी मर्जी की रोज, और जो हैविंग है वो ग्रुप्स के ऊपर किसी किस्म का फिल्टर लगाना है कि अपनी किसी ग्रुप्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा के उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो वो हम हैविंग की मदद से करेंगे। लेकिन अभी आपको इस पॉइंट पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इनको बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। इसके बाद हमारा सिलेक्ट है, और सिलेक्ट में हम देखेंगे कि हम अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से कॉलम्स हमने अपने आउटपुट में दिखाने हैं तो वो सिलेक्ट के थ्रू होता है, और वो आखिर में होता है सेकंड लास्ट पे। और सबसे आखिरी जो चीज़ होती है वो होता है ऑर्डर बाय। अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि हम किसी खास ऑर्डर में आउटपुट को दिखाना चाह रहे हैं तो वो ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू होता है। तो ये जो है सीक्वेंस फॉलो होता है। ये आई रिपीट अगेन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अपने जहन में रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि आपकी जो कोई भी स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या आएगी या किस तरह वो बेसिकली एग्जीक्यूट होती है। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने से पहले, पहली बात, द ऑर्डर ऑफ द क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। कि जी ये नहीं कि आप फ्रॉम को ऊपर ले जाएं, सेलेक्ट को नीचे ले आएं, या मतलब वेयर से पहले ग्रुप बाय ले आएं, ऑर्डर बाय उससे पहले ले आएं। जिधर हमने वो जो स्टेटमेंट्स का जो पोजीशन देखी है, मसलन सेलेक्ट कीवर्ड जहां पे आता है वो वहां पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं और लिख लें, ठीक है। फ्रॉम जहां पे आता है उधर ही आएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि वो उसको किसी और जगह पे ले आए। तो जो उनकी पोजीशन है वो उधर ही है। इसी तरह हमने देखा जो दो मैंडेटरी क्लॉज हैं, अच्छा ये जो मुख्तलिफ हैं इनको हम क्लॉज भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं, सिलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज एंड सो ऑन, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो मतलब हम इनके लिए जो कीवर्ड्स हैं इनके साथ हम एक टर्म यूज करते हैं क्लॉज का। तो हमने देखा कि दो हमारे मैंडेटरी क्लॉज हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, और सिलेक्ट और फ्रॉम वो दो क्लॉज हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। बाकी रिमाइंडर आर ऑप्शनल। द सिलेक्ट ऑपरेशन इज क्लोज्ड। हमने ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी रिलेशनल मॉडल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एक किसी सेलेक्ट स्टेटमेंट की जो आउटपुट है दैट कुड बी यूज्ड एज एन ऑपरेंड, वो किसी और जो है ऑपरेशन के लिए भी उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने उधर भी डिस्कस की थी कि जी रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी ऑन अ टेबल इज अनदर टेबल। तो जब एक और हमने देखा कि जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो किसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, वो टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो मतलब किसी भी क्यूरी का रिजल्ट कुड बी यूज इन अनदर क्यूरी, वो किसी और क्यूरी के अंदर उस क्यूरी का रिजल्ट जो है वो यूज हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वक्त आ गया है कि अब हम प्रैक्टिकली या अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करें। तो पहली जो स्टेटमेंट है इट्स वेरी सिंपल, जिसमें हम तमाम रोज किसी भी एक टेबल की और तमाम उसके एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स जो है वो देखेंगे। तो हमें पूछा गया है, हमें कहा गया कि क्यूरी लिखें लिस्ट फुल डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ। व्हाट डज इट मीन कि तमाम स्टाफ की तमाम डिटेल्स आप दिखा दो, हर एक एट्रीब्यूट दिखा दो, और जितनी रोज हैं वो सारी दिखा दो। तो इसको लिखना बहुत आसान है। हम लिख सकते हैं सिलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्पेस दे के हमने जितने एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब अब सिलेक्ट और उसके आगे एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स ये वो होते हैं जो आपको आउटपुट में नजर आएंगे जिनके लिए वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स आप इधर सेलेक्ट करेंगे वही आपके आउटपुट में शो होंगे। तो हमने देखे स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच नंबर, फ्रॉम
फ्रॉम का कीवर्ड आप देखें, जो आपके जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉमा सेपरेटेड हमने किया, कॉमा से सेपरेट किया, लेकिन जो आखिरी एट्रीब्यूट है उसके बाद हमने कॉमा नहीं लगाना। और उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड है, और फ्रॉम के कीवर्ड के बाद स्टाफ, और स्टाफ क्या है, आपके उस रिलेशन या उस टेबल का नाम है, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये आपको, चूंकि हमने तमाम कॉलम सेलेक्ट किए हैं और तमाम रोज सेलेक्ट किए हैं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये वाली रोज दिखाओ, कोई खास कंडीशन नहीं लगाई, तो ये सारी रोज उस टेबल के अंदर जितनी भी पड़ी होंगी वो सारी दिखा देगा एज इट इज, वो पूरा टेबल जो था वो दिखा देगा। अच्छा, इसी क्यूरी को आसान तरीके में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने तमाम एट्रीब्यूट्स दिखाने हो, और फर्ज करें एक टेबल के अंदर आपके 50 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप 50 एट्रीब्यूट्स लिखने के बजाय आप सिंपल काम क्या कर सकते हैं कि आप एक स्टैटिक, ये जो वाइल्ड कार्ड है ये यूज़ कर सकते हैं कि जी आपका स्टैटिक जो है इसको यूज़ करेंगे तो इससे मुराद ये होती है ऑल कॉलम्स, ठीक है। जितने आपके कॉलम्स हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के अंदर वो सारे खुद ही दिखा देगा। तो मतलब बजाय ये ऊपर वाली आप इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने के, इसको आसान तरीके से कैसे लिख सकते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ। तो अब ये भी वही रिजल्ट देगा जो ऊपर वाली आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट उसका रिजल्ट होगा। तो अब इसका रिजल्ट देखें तो हम देखेंगे कि जो कुछ स्टाफ के टेबल में पड़ा हुआ था वो सारा एज इट इज जो है हमें दोबारा शो हो गया। तो अब जो कुछ भी स्टाफ के टेबल में जितनी रोज पड़ी होंगी वो सारी की सारी, क्योंकि हमने सारी रोज और सारे एट्रीब्यूट्स कहे हैं, तो वो सारा जो है हमें शो हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में ये है कि हम प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, हम अपनी मर्जी की जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें आप देखें कि आप अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट्स, आपसे कहा जाता है प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ showing only staff number, first and last names and salary. So you are basically selecting specific columns, but you are going for all the rows. Still rows के ऊपर कोई restriction नहीं है, आपने just ये कहा जी कि जो कॉलम है वो कुछ मुझे दिखाओ, सारों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आपने कमांड लिखी SQL select staff number, first name, last name। देखें आप ऊपर आपसे जो क्यूरी कही गई थी उसी के मुताबिक आप लिख रहे हैं। स्टाफ नंबर उसने पूछा था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछा, और सैलरी पूछा, और सैलरी के बाद मैंने आपको बताया जो आखिरी एट्रीब्यूट होगा सिलेक्ट के बाद उस पर आपने कॉमा फिर नहीं लगाना, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम जिस टेबल में से आपने डाटा लेना है। तो स्टाफ आपके टेबल का नाम है। तो ये जो है आपका, अब ये आपको सिर्फ 4 कॉलम्स जो है वो रिटर्न करेगा। आउटपुट क्या आएगी, 4 कॉलम्स, जिसमें स्टाफ नंबर होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा और सैलरी होगी, लेकिन रोज जो है स्टिल सारी की सारी आएंगी। तो ये आउटपुट आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि आपके 4 एट्रीब्यूट्स के साथ जो है ये तमाम जो है वो आपके रोज यहाँ पे नजर आ गई हैं। जो अगली हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो हमसे लिखने को कहा जा रहा है वो है कि लिस्ट द प्रॉपर्टी नंबर्स ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज दैट हैव बीन व्यूड। ठीक है जी, तो एक चीज हमने डिस्कस की थी कि रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर तो हमने बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन में कि जब हम प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं तो प्रोजेक्शन में क्या होता है कि वो डुप्लीकेट अगर है तो उनको एलिमिनेट कर देता है। लेकिन मैंने बताया था कि आईएसओ का एसक्यूएल जो स्टैंडर्ड है वो उसमें सेलेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो अगर कोई डुप्लीकेट रोज आ रही हैं तो वो डुप्लीकेट ही आएंगी। अब इसकी बड़ी ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसके थ्रू हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम व्यूइंग। तो एक हम कॉलम जो है या एट्रीब्यूट की वैल्यू देख रहे हैं और प्रॉपर्टी नंबर की, और किस हम टेबल में से देख रहे हैं, व्यूइंग के अंदर से। तो आप जरा, मैं आपको पिछली स्लाइड्स पे ले जाता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि व्यूइंग के टेबल में क्या क्या मौजूद है। और हम चूंकि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर के साथ है, ठीक है, तो हम सिर्फ उसी को देखेंगे। ये देखें व्यूइंग का आपको स्लाइड नजर आ रही होगी। व्यूइंग के अंदर आपकी 5 रोज हैं और प्रॉपर्टी नंबर में देखें PA14, PG4, PG4 2 दफा, PA14 2 दफा और PG36 1 दफा। तो 5 रोज आ रही हैं। तो अब अगर उस क्यूरी का आप रिजल्ट देखें तो आप देखेंगे कि ये पांचों की पांचों रोज जो है वो आपको रिटर्न हो रही हैं। और हमने कहा था जी कि हर जो हम किसी भी कोई टेबल के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट इज अगेन अ
टेबल, तो इधर ये भी टेबल है लेकिन जो रिलेशन की प्रॉपर्टी थी ये वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है। तो मतलब ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको देखना है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अब हम तो चाहते हैं कि जो रेपिटेशन है वो ना हो, तो हमने तो सिर्फ इसमें हम इंटरेस्टेड थे ना कि जो आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी व्यू हुई हैं, हम ये नहीं देखना चाह रहे थे वो कितनी दफ़ा व्यू हुई हैं। तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए अगर आपको याद हो वो जनरल फॉर्म के अंदर जो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट की हमने देखी थी, उसमें कुछ ऑप्शंस दो दी थी हमें, एक डिस्टिंक्ट की दी हुई थी और एक ऑल की दी हुई थी। तो डिस्टिंक्ट जो होता है वो डुप्लीकेशन को इलिमिनेट करने के लिए होता है कि अगर कोई डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको फिर वो एक दफ़ा रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट लिख दें कीवर्ड और डिस्टिंक्ट के बाद प्रॉपर्टी नंबर लिखें, तो इसका मतलब यह है कि अब हम प्रॉपर्टी नंबर की डुप्लीकेट वैल्यूज अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो हमें सिर्फ एक दफ़ा दिखाए, मतलब अगर वो मल्टीपल टाइम जितनी मर्जी दफ़ा आ रही है उसको जस्ट कितनी दफ़ा शो करे, एक दफ़ा। तो ये डिस्टिंक्ट जब हम करेंगे तो अब जो आपकी डुप्लीकेशन हो रही थी 5 रोज के बजाय अब कितनी आएंगी, 3 रोज आएंगी, क्योंकि दो जो आपकी वैल्यूज थी वो दो दफा आ रही थी, तो इसलिए टोटल जो आपकी रोज रिटर्न होंगी इस स्टेटमेंट के बाद वो 3 होंगी। तो ये आप इसकी आउटपुट जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप देखें आपके PA14, PG4 और PG36, तो ये आपकी बेसिकली आउटपुट होगी इस एसक्यूएल स्टेटमेंट की। तो डिस्टिंक्ट का आई होप कि ऑप्शनल है, अगर आप डुप्लीकेशन मसलन अगर आपको लगता है कि आपका जो आउटपुट आएगा उसके अंदर डुप्लीकेशन पॉसिबल है और आप चाहते हैं कि डुप्लीकेशन अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फील्ड्स, जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उनकी मदद से हम कुछ नई फील्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव या इनको कंप्यूटेड फील्ड्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये अज्यूम करें कि जो हमें सैलरी स्टाफ की दी हुई है ये एनुअल सैलरी है और अगर हम उसमें से मंथली सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि एनुअल सैलरी है तो वो 12 महीने की है, तो अगर हम उसको 12 से डिवाइड कर दें तो वो हमें कितने महीनों की सैलरी मिल जाएगी, 1 महीनों की। और आपकी अगर सिचुएशन यही है कि यू आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस लिस्ट ऑफ मंथली सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ शोइंग स्टाफ नंबर, फर्स्ट लास्ट नेम एंड सैलरी। अब सैलरी आप देखें कि सैलरी के जो फील्ड है दैट इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, टेबल के अंदर मौजूद है, लेकिन वो आपका एनुअल सैलरी है। लेकिन अब आप उस फील्ड की मदद से, उस कॉलम की मदद से आप एक नई फील्ड कैलकुलेट करोगे जो एक्चुअली आपके टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो ये हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा, सैलरी डिवाइडेड बाय 12। तो हम किसी किस्म का भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, और फ्रॉम स्टाफ। अब आपका 4 एट्रीब्यूट शो होंगे, लेकिन जो चौथा एट्रीब्यूट होगा ये एक डिराइव्ड, कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड जो है वो एट्रीब्यूट है या कॉलम है, और इसमें जो वैल्यू आएंगी वो किसी एग्जिस्टिंग फील्ड में से आएंगी लेकिन किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन के नतीजे में आएंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, डिवीजन का। इसका आउटपुट देखें तो आप ये देखेंगे कि वही 4 फील्ड्स हैं, लेकिन आप जो चौथा आपका एट्रीब्यूट है उसका नाम देखें कि कॉलम 4 लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपके जो पहले हम कॉलम सेलेक्ट करते थे वो तो जो टेबल के अंदर मौजूद होते थे, तो जो कॉलम का नाम होता था वही आ जाता था, लेकिन अब ये जो डिराइव एट्रीब्यूट है अब ये मुख्तलिफ DBMS इसको मुख्तलिफ तरह से करेंगे। मसलन इधर कॉलम 4 लिखा हुआ है, मसलन कुछ में ये है कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखा जैसे सैलरी डिवाइडेड बाय 12 शायद वही लिखा आ जाए, कुछ में नो नेम लिखा आ जाए, तो मतलब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हम आगे थोड़ी सी देर में जाके देखेंगे कि हम अपनी मर्जी का अगर इसको नाम देना चाहें तो हम वो नाम भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस फील्ड को गौर से देखें तो आपका जो कॉलम 4 में सैलरी की फील्ड आ रही है, अब ये वो जो टोटल सैलरी थी उसको डिवाइड किया उसने 12 से, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। तो बाकी डाटा ऑलमोस्ट वही वाला है जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। अब कोई भी एसक्यूएल का जो एक्सप्रेशन है, जैसे हमने सैलरी डिवाइडेड बाय 12 किया, इसमें हम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। पैरेंथेसिस
का इस्तेमाल हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कुछ स्पेसिफिक मसलन प्लस पहले करवाना चाह रहे हैं, तो जैसे हर एक आपके जो ऑपरेशन की कुछ प्रेसिडेंस होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले होते हैं, प्लस माइनस बाद में परफॉर्म होते हैं। तो अगर आप प्लस पहले करवाना चाह रहे हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाद में कराना चाह रहे हैं, तो पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं कम्प्लेक्स आपके एक्सप्रेशंस को मतलब आप रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो है मोर देन वन टेबल कॉलम कैन बी यूज्ड इन अ कैलकुलेटेड कॉलम फील्ड, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम्स भी यूज़ करना चाहें तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। However, the column referenced in an arithmetic expression must have a numeric type। अब जब अर्थमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक लॉजिकल सी बात है कि जो आपके अर्थमेटिक होता है वो हमेशा वो किसी न्यूमेरिक टाइप पे ही होता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि आप जिन एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के ऊपर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दे मस्ट बी ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप। द फोर्थ कॉलम ऑफ दिस रिजल्ट टेबल हैज बीन आउटपुट एज कॉलम 4 कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द डायलेक्ट ऑफ एसक्यूएल। जैसे मैंने डिस्कस किया कि मतलब बाज में आपको कॉलम 4 भी लिखा आ सकता है, नो नेम भी लिखा आ सकता है, सैलरी डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब किसी भी कॉलम को हम रीनेम भी कर सकते हैं और उसके लिए एज का क्लॉज यूज होता है। अगर आपको याद हो, हमने जो है जनरल फॉर्मेट था एसक्यूएल का, उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो हम उसी एग्जाम्पल को जस्ट हम रीनेम करना चाहते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम, और उस एट्रीब्यूट को हम मंथली सैलरी के तौर पे दिखाना चाहते हैं। तो वही वाली स्टेटमेंट है एग्जैक्टली, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी डिवाइडेड बाय 12, और एज का कीवर्ड है और एज के कीवर्ड के बाद मंथली सैलरी। अब हम इस एट्रीब्यूट का जो नाम चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, मंथली सैलरी हमें नजर आए फ्रॉम स्टाफ, बाकी सारा कुछ वही है। जस्ट अब जो सैलरी डिवाइडेड बाय 12 वाला एट्रीब्यूट है, चूंकि ये एक डिराइव्ड या कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड एट्रीब्यूट है, तो इसके अब जो हेडिंग है, जो ऊपर वो हेडिंग आएगा, अब वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, मंथली सैलरी एज इट इज, जैसा आपने इधर लिखा है। तो मतलब स्पेसेस नहीं हम दे सकते, हम कोई अंडरस्कोर वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी नेमिंग है इसी तरह से, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आपको जस्ट वो जो हेडिंग है वो आपको चेंज नजर आएगा। कॉलम 4 की जगह पे स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि आपका मंथली सैलरी लिखा हुआ आएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के लेक्चर की समरी हम देख लेते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसक्यूएल की बात की, क्या एसक्यूएल के ऑब्जेक्टिव्स थे जो अचीव हुए या नहीं हुए। हमने कुछ हिस्ट्री के ऊपर बात की, गो कि ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा अपने इस हवाले से कि एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है, हमने एसक्यूएल की इंपॉर्टेंस की बात की कि कैसे ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में यूज़ हो रही है, बहुत सारे DBMS इसकी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी अपने आप को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कहता है कि तो उसको एसक्यूएल की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जो कुछ रूल्स हैं उस हवाले से किस तरह लिखी जाती हैं एंड सो ऑन, उस हवाले से हमने बात की। और फिर हमने डाटा मैनिपुलेशन पार्ट को स्टार्ट किया, और सबसे पहला जो काम हम कर रहे हैं वो सिलेक्ट का है। और सिलेक्ट मैंने आपको बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका और बड़ा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलर क्यूरीज हम बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की सिलेक्ट की स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आप जो हम आगे इस चैप्टर में जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये कितना जो है इसके अंदर काम हो सकता है। तो आई होप कि आप अपने जो है अपने सिस्टम्स पे जो है आपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है वो उसका एक कॉपी इंस्टॉल कर लें, और फिर इंशाल्लाह जो है वो लैब सेशन के हवाले से आप थोड़ी सी अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो है वो लिखना सीख लेंगे, और इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे आपके लिए चीज़ों को समझना उतना ज़्यादा आसान होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।